নমস্কার, কণাস ফুড ডায়েরি থেকে আমি আশিস কণা। আজকে আমরা ওঙ্কারেশ্বরে আমাদের দর্শন হয়ে গেছে। এখন ওঙ্কারেশ্বর থেকে রাত্রে আমরা ওঙ্কারেশ্বরে ছিলাম। আজকে আমরা এসেছি মহেশ্বরে। রাস্তায় কিছুটা সময় গিয়ে আমরা একটু টিফিন করেছি, তারপরে এই মন্দিরে এসেছি। এখন আমরা মন্দির দর্শন করব। দুটো নদী আছে, মহেশ্বরী নদী আর নর্মদা নদী। তো আমরা এখন মন্দিরের দিকে যাচ্ছি, সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে যেতে হবে, আস্তে আস্তে উঠছি। দেখ, কালেশ্বর মন্দির দর্শন করব। কালেশ্বর মন্দির দর্শন করব। এবার আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি মন্দির দর্শন করতে। সিঁড়ি ভেঙে যে আসছি আস্তে আস্তে। ওই দেখুন, ওখানে আমার বোন বসে আছে, ওখানে আমার ছেলে বসে আছে। এই দেখুন, এই যে লেখা আছে কালেশ্বর ধাম। এই ধামেটা হচ্ছে রানী অহল্যাবাইয়ের শহর এবং অহল্যাবাইয়ের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। যে মন্দিরের মধ্যে ঢুকছি, দেখুন যাচ্ছি আমি এই রাস্তা দিয়ে। এটা হচ্ছে দেখুন মহেশ্বরী নদী আর নর্মদা নদীর সঙ্গম স্থল। দেখুন ওখানে দুটো নদী মিশেছে। আমরা চলে এসেছি এই একটা মন্দির। এখানে নারায়ণপুরের গুরুজি প্রথম ধাম বানিয়েছিলেন। এর নিচেতে শিবলিঙ্গ বা শিবের মন্দির আছে। তো আমরা এই মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। দেখুন মন্দিরটা কত সুন্দর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই যে চারিদিকটা একদম দারুণ সুন্দরভাবে সাজানো। আমরা ওঙ্কারেশ্বরে একটা নর্মদা রূপ দেখেছি। এটা আমরা যেটা মহেশ্বরে এলাম, মহেশ্বরে আরও দু জায়গা মন্দির দেখলাম। আর এখানে হচ্ছে নর্মদা নদীর আর একটা রূপ দেখুন, সহস্র ধারা রূপে বইছে। এই যে খুব সুন্দর জায়গাটা, এটা আমরা দর্শন করতে এসেছি। অনেকটা চওড়া, মাঝে মাঝে পাথরের টিলা আছে। সবারই ফটো নিবি, হ্যাঁ? তো আমার এই যে এখানে আমরা মহেশ্বরে এসেছি। এটা হচ্ছে একটা দ্রষ্টব্য স্থান। এটা হচ্ছে বড় গণপতি মন্দির। ইনি হচ্ছে মাতা মহারানী অহল্যাবাই। ইনি খুবই শিব ভক্ত ছিলেন। আর মোগল আমলে যেমন ঔরঙ্গজেব, বাবর আরও অন্যান্য রাজাদের দ্বারা যেসব আমাদের ভারতবর্ষের শিব মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বা নষ্ট করে দিয়েছিল, এই মহারানী গোটা ভারতবর্ষে সেই শিব মন্দির যেখানে যেখানে ধ্বংস হয়েছিল সেগুলি উদ্ধার করেছিলেন। দেখুন, এটা হচ্ছে রানী অহল্যাবাইয়ের রাজগতি। এখান থেকে অহল্যাবাই এখানে থাকতেন এবং এখান থেকে রাজ্য পরিচালনা করতেন। দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন এখনো কত সুন্দরভাবে সাজানো আছে। ওই যে ওখানে ব্যবহৃত জিনিসপত্র আছে। দেখুন, আমরা এই ঘাটের মধ্যে চলে আসছি। এটা হচ্ছে অহল্যাবাইয়ের ঘাট। এখানে অহল্যাবাই প্রত্যেক দিন 1 লক্ষেরও বেশি বাবা মহাদেবকে তৈরি করে পাথরের ওপরে খোদাই করে পুজো করতেন। আবার সেগুলো এই ঘাটের মধ্যে বিসর্জন দিতেন। তো এই ঘাটে তিনি পূজা করতেন।
আর ওই মহাদেবগুলোকে বিসর্জন দিত। তারপর যখন আস্তে আস্তে একের পর এক শিব গড়ে পুজো করতে লাগলেন, 1 লক্ষেরও অধিক শিব তৈরি করে প্রত্যেক দিন পুজো করতে লাগলেন। তারপর যখন আর এখানে কোনো পাথর অবশিষ্ট রইল না আমাদের শিব গড়ার জন্য, তখন তাকে স্বয়ং মহাদেব দেখা দিয়েছিলেন। অহল্যাবাইয়ের সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে দেখা দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে সেই অহল্যাবাইয়ের ঘাট, নর্মদা নদীর ওপর। এখানে আমরা সেরকম কিছুই জানি না, আমরা একটা গাইড নিয়েছি, গাইডের ওপরে এটা হচ্ছে মান্ডু, এখানে ওপরে প্যালেসটার ওপরে আমরা আছি। হ্যাঁ, ওই প্যালেসটাতে যাব, যেখানে তো আমরা সব কিছু জানি না, গাইড আপনাদেরকে সব বলবে, আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা रूपमती महल। देखिए अभी आप जिस जगह आए हो उस जगह का नाम है मांडवगढ़, मांडू भी बोलते हैं अभी। इसको 5 नामों से जाना गया है, मांडवगढ़, मंडप दुर्ग, सादियाबाद, खुशियों की नगरी और आनंद की नगरी। इन 5 नामों से मांडो को जाना गया है। एक्चुअली मांडो को जिसने बसाया था, जिसकी नींव रखी थी इसने, उनका नाम था वाघपतिमुंज और मालवापतिमुंज। इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ये थे राजा भोज के ताऊ जी। राजा भोज को सब जानते होंगे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आपने कहावत भी सुनी होगी। उन्हीं उनके राजा भोज ने इसे बसाया था मांडो में। 8th सेंचुरी में मांडो को बसाया गया था। ये पहले लोग धार और भोपाल के रहने वाले थे। भोपाल का नाम सुना था? भोपाल यहाँ से 200 किलोमीटर है, वहाँ के रहने वाले थे। पहले भोपाल का भी नाम था भोजपाल और धार का नाम था धारेश्वर, बाद में चेंज करके। उस समय मांडो में टोटल पॉपुलेशन थी 9 लाख की, और दिल्ली में 3 लाख। रीज़न ये रहा है कि जो भी बाहर से मांडू में फैमिली बसने के लिए आती थी, तो यहाँ के जो लोकल राजा रहते थे, यहाँ की जो लोकल पब्लिक रहती थी, जो भी फैमिली बसने के लिए आएगी तो यहाँ से हर एक घर से, मांडो के हर एक घर से एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा, ताकि जो भी बाहर से व्यक्ति आए वो अपना घर बना सके। एक गोल्ड कॉइन और एक ब्रिक, ताकि जो हमारा वो घर, जो व्यक्ति आएगा वो अपना घर बना सकेगा यहाँ पर। इसलिए मांडो में पहले 9 लाख की आबादी हो गई थी। उसके बाद में 10th सेंचुरी में जब राजा भोज को मालवा की, मध्य प्रदेश को संभालने के लिए मालवा की गद्दी मिलती, तो राजा भोज मध्य प्रदेश के 2 पार्ट कर देता है, मालवा और निमाड़। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये है मालवा की लास्ट बाउंड्री, यहाँ से मालवा खत्म हो जाता है। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेंगे तो बैक साइड हमें निमाड़ एरिया दिखेगा। मालवा का 200 साल कैपिटल रहा है अवंतिका नगर उज्जैन, और निमाड़ का ओमकारेश्वर महेश्वर। निमाड़ की खास बात है कि जो निमाड़ एरिया है वो पूरा फ्लैट एरिया है, पहाड़ी इलाका नहीं है, और जो मालवा है वो पूरा पहाड़ी इलाका है और विंध्याचल माउंटेन पे बसा हुआ है। इसलिए पूरा मध्य प्रदेश को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में राजा भोज इस बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो बिल्डिंग को 3 पार्ट में बनाते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर में हम देखेंगे तो ये अष्टबल, घोड़ों का हॉर्स हेल। 2nd फ्लोर पर सोल्जर रहते थे, और राइट हैंड में वाटर टैंक बना है। तो ये बिल्डिंग पहले 10th सेंचुरी में राजा भोज के टाइम पे एक वॉच टावर के रूप में बनाया गया था, आर्मी हेडक्वार्टर। उसके बाद में 1555 में 1555 में जब अकबर का राज होता है, तो अकबर के एक सोल्जर बाज बहादुर को मालवा दिया जाता है और मालवा का गवर्नर बनाया जाता है। एक्चुअली बाज बहादुर का जो ओरिजिनल नाम होता है वो है वाजिद अली खान, बट उनकी लड़ाई करने की शैली इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो एक ईगल की तरह फाइट करते हैं, एक बाज की तरह अटैक करते हैं। तो अकबर ने उन्हें बाज बहादुर के नाम से नवाजा था, तब से वो बाज बहादुर के नाम से जाने जाते हैं। और बाज बहादुर के 2 शौक रहे हैं, एक संगीत और दूसरा शिकार खेलना पसंद था उसे। और रूपमती यहाँ से 28 किलोमीटर धर्मपुरी गांव की रहने वाली थी। वो एक राजपूत कन्या थी। उनके पिताजी का नाम था थानसेन, जो वहाँ के जमींदार थे। रूपमती का बचपन से नियम था कि जब तक वो नर्मदा नदी के जल के दर्शन नहीं करती, अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करती, कुछ भी खाती पीती नहीं थी जब तक वो दर्शन नहीं करती। रूपमती नर्मदा किनारे बैठकर डेली अपना संगीत अभ्यास करती थी। एक दिन जब बाज बहादुर यहाँ से शिकार खेलने निकलता है, तो शिकार खेलते खेलते मालवा से निमाड़ में चला जाता है, बट उनको शिकार तो मिलता नहीं। उनके एक सोल्जर द्वारा पता चलता है यहाँ पर एक रूपमती नाम की कन्या है जो बहुत अच्छा संगीत जानती है। तो बाज बहादुर उनके दरबार में जाते हैं, उनका संगीत सुनते हैं। करीबन 1 साल तक उनका सिलसिला चलता रहा। बाज बहादुर डेली धर्मपुरी जाना, उनके गीतों को सुनना और रिटर्न मांडो आना। रूपमती एक बार मेघ मल्हार गा रही थी। मेघ मल्हार की इस तरह की समर टाइम पर बरसात हो जाए, जब जब गाते तब तब बारिश होने लगती। तो उसे देखकर बाज बहादुर बहुत खुश होता है और रूपमती को ये ऑफर करता है कि आपको मेरे साथ सादियाबाद चलना पड़ेगा संगीत के लिए।
पहले 15th सेंचुरी 1555 में मांडवगढ़ का नाम था सादियाबाद, ये एक मुगल नाम है। तो रूपमती उन्हें बोलती है कि सुल्तान मालवा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जब तक नर्मदा नदी के जल के दर्शन नहीं करती हूँ, अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करती हूँ, जब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जीवित कैसे रहेंगे। तो बाज बहादुर रूपमती को यह वादा करके मांडव ले आते हैं। वो जहाज महल के अंदर रानी रूपमती 48 घंटे भूखी पैसी रहती है। उसी दौरान 48 घंटों के अंदर अंदर इस बिल्डिंग के ऊपर को 2 मंडप बनाए जाते हैं। तो ये दोनों मंडप देख रहे हैं आप ऊपर वाले, ये दोनों मंडप 48 आवर्स के अंदर अंदर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग का नाम रानी रूपमती पवेलियन और रानी रूपमती मंडप रखा गया। तो सुबह रूपमती जहाजमहल से घोड़ापाल के द्वारा यहाँ पर आती थी, ऊपर से नर्मदा नदी के जल के दर्शन करती है और फिर रिटर्न जाती है नीचे बाज बहादुर पैलेस है, वहाँ पर कुछ बाज बहादुर को संगीत सुनाना, उसके बाद में रिटर्न शाही परिसर में चले जाती थी। तो वह रहती नहीं थी यहाँ पर, रहती थी वो जहाजमहल के अंदर थी। ये रेसिडेंसी एरिया नहीं था, ये राजा भोज के टाइम पे एक वाच टावर के रूप में इसे बनाया गया था। उसके बाद जब रूपमती यहाँ पर आती है तो इसे दर्शन करने के लिए यूज़ किया जाता था, बाकी ये रेसिडेंसी एरिया नहीं था। बिजली गिरने से टूट चुका था, तो ये उसका आर्किटेक्ट देखिए, उसका आर्किटेक्ट दोनों में डिफरेंट नज़र आएगा आपको। এই যে দেখলেন আমাদের গাইড রুমতি মহলের জিনিসটা সব বুঝিয়ে দিল। তো এটা আমাদের দেখা হয়ে গেল, এরপর আমরা নিচে নেমে যাব, তারপর কোথায় যাচ্ছি আমাদের বলছি। আমরা এখন এবার এসেছি পরবর্তী গন্তব্যস্থল জাহাজ মহল, এখানে এটা আমরা দেখব এবং আমাদের গাইড আছে, তিনি কিছু বলবেন, সেটা আমি তো আর সব জানি না, গাইড যেটা বলবেন সেটা আপনারা শুনবেন। তো আমরা এবার ওখানে যাচ্ছি। ये है जहाज महल, शिप पैलेस कहा जाता है इसे। बिल्ड बाय सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी 1469 टू 15 सेंचुरी तक, यानी पूरा कंप्लीट होने में से 31 ईयर लगे, 31 साल पूरा कंप्लीट हुआ पूरा कैंपस। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जब पहली बार बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं तो बादल नीचे आ जाते हैं, चारों तरफ पानी नज़र आता है, उससे तारे नीचे आ जाते हैं। सामने जो देख रहे हैं ये है कपूर तालाब और पीछे की साइड मुंज तालाब। ये दोनों तालाब यहाँ तक नीचे तक हाल में आ जाता, दोनों तालाब का पानी नीचे आ जाता, बेसमेंट में घुस जाता था। तो वो जब चढ़ते हैं पानी की वेव चलती रहती है, क्रिएट होती रहती है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी समुद्र के जहाज में बैठ कर जा रहा हूँ, इसलिए इसका नाम शिप पैलेस रखा गया। और नाइट के टाइम पे चढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कोई जहाज पानी में लंगर डाले खड़ा हो, इसलिए इसका नाम शिप पैलेस रखा गया। और सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इस बिल्डिंग को अपने हरम के लिए बनाया। हरम मीन्स एक राजा की अनेक रानियाँ। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के हरम में 1500 पटरानियाँ रही थी और उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई मेल सोल्जर नहीं रखा था उन्होंने। 1000 सोल्जर सारे टर्किश से बुलाए गए थे, सारे ट्रांसजेंडर, और सभी को पुरुष की वेशभूषा में यहाँ पर चारों तरफ खड़ा कर दिया था, ताकि कोई भी अटैक करेगा तो उसे ऐसा लगा कोई मेल सोल्जर खड़ा हो। इसलिए यहाँ पर कोई मेल सोल्जर नहीं था, सारे ट्रांसजेंडर सोल्जर थे। जो जेंट्स लोग था उनको अंदर आना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ये हरम জল ফিল্টার হওয়ার জায়গা, এখান থেকে ঘুরে ঘুরে জল ফিল্টার হয়। मार्केट एरिया यहाँ पे ওখানে যায়। अलग अलग जगह में अलग আজকে আমাদের মান্যমাসের দর্শন এখানেই শেষ হলো, যেগুলো দেখার জায়গা সব শেষ করলাম। এখন এরপর আমরা গাড়িতে করে উজ্জয়িনী করতে রওনা দেব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সবাই আমাকে লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।